Okay. And I am sure that you have learned grade 9 and 10 about solar system. Sure? And tell me about solar system. Not? Okay. Or are you know solar system information? Share me. How many planets in our solar system? Firstly, I tell you, Mercury is the first planet close to the Sun, and ending planet Pluto is the ending planet our solar system, and then Earth is the third. Earth is the third planet our solar system, and Mars is the fourth planet system. Fourth, Mars is the number in a solar system, fourth number. Okay, and then a question: why is necessary exploring for anything? You know, it's a human curious. A man is searching more than more anything or a knowledge. So I sharing you before start our lesson the dark and the golden eye. I think I discuss you about the exploring of Mars or a information. Okay. Our scientists and engineers are sorry working to achieve this goal. Our scientists and engineers are want to know the uh, the past of the earth or a future, because uh, we want to know about the earth or a Mars or others planet. That's our life is lived to their possible or not. So firstly we discuss Mars and the Mars land, and generally Mars is known as a red planet or a orange planet. Let's start. Okay, let's start. Good morning and Assalamu alaikum students. How are you? Fine. Today's our topic dark Deva and golden eye. Dark Deva and golden eye. Firstly, we are talking about to and info Mars. I think before we start our new topic dark Deva, before we some points
discuss or info Mars. Let's start. Mars. Mars is the fourth planet from Sun, 141 million miles. The surface of Mars is an orange because it covered in iron oxide, dust, soil, rock. Mars nickname Red Planet. Mars has two moons, Deimos, Phobos. Mars has two moons, Deimos, Phobos. Mars is smaller the Earth with the diameter of 4,217 miles. People think about Mars. How long in day on Mars? And then this question point out to usually people's man thinks about how long in a day on Mars. You understand? And then several day, 1 day, 0 hours, 37 minutes, and solar days, 24 hours, 39 minutes, 35 seconds. Orbit periods, 687 days, and moons, two moons. Two moons, Mars has two moons, and Deimos, Phobos. Yes, students, before it exploring dark, river and golden eyes. Yes, understand? It's my effort for you. Info for Mars. Mars looks like some there orange and some there red. So it's known by a red planet. Yes, let's start. And the next exploring अब इस लेक्चर्स के जो है इसके डार्क रिवर एंड द गोल्डन आई में एक फैमिली है हैरी उसकी वाइफ कोरा एंड हैव 3 चिल्ड्रन एक्चुअली ये स्टोरी है इसी प्लेनेट से मार्स के मुतालिक कि जमीन पे जो है वो वार हो गई है जंग छिड़ गई है और हैरी और उसकी वाइफ और उसके 3 बच्चे जो हैं वो क्या है वो प्लेनेट मार्स पे जो है वो जमीन को चेक आउट कर देते हैं और मार्स पे जो है वो पहुंचे हुए हैं। अब इसकी क्या रीजन है कि जमीन पे क्योंकि जंग छिड़ी हुई एटमी वार जो है वो हो रही है हर तरफ जो है वो हंगामे और ये सब कुछ सूरत हाल थी तो इसको हैरी ने यही अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यही बेस्ट समझा कि इसको जो है हमें छोड़ देना चाहिए ऐसी जमीन को जहाँ पे हर वक्त एटमी वार इस तरह का कुछ होता रहता है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हैरी से पहले जो है वो नियर अबाउट 8 to 1000 जो पीपल्स थे वो पहले से मार्स पे जा चुके थे यानी कि इस एटमी वार की वजह से लोग जो थे वो जमीन से वहां जा चुके थे और जब हैरी और कोरा और उसके 3 बच्चे जो हैं जब वो वहां जाती हैं तो क्या अब उधर का जो है एटमॉस्फेयर
जो है वो राइटर ने क्या दिया है कि इसकी जो ज़मीन है वो बड़ी वो रफ़ है, यानी कि इसके आप देख रहे हैं ये प्लैनेट कैसा है, कहीं पे ऑरेंज और कहीं पे रेड नज़र आ रहा है। सेम थिंग वो देखते हैं कि उसकी जो ज़मीन है उसकी डस्टी है वहाँ पे, और एक तो उसका कलर रेड है और फुल ड्राई फुल ड्राई है, और वहाँ पे यानी कि उनका दम घुट रहा है वहाँ पे, वो नॉट फील इजी। तो हैरी जो है वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमने लगता है कोई मतलब कि हमसे गलती हो गई है, हम इस प्लेनेट पे जो है वो आ गए हैं, तो चलो अपनी फैमिली को कहता है को लेट्स गो, हम वापस जमीन पे जाते हैं। बट उसकी जो वाइफ है वो क्या कहते हैं रिफ्यूज कर देती है, वो कहती है नहीं, जो जमीन के जो लोग हैं वो पीसफुल नहीं है, वहां पे आई रोज जो है एटमी वॉर जो है वो होती रहती है, तो मैं अपनी फैमिली को साथ जो है हैरी प्लीज आई रिफ्यूज यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तो हमारे लिए यही बेस्ट है कि हम इधर मार्स पे जो है वो स्टे कर लें। बट हैरी जो है वो वहाँ का खाना और वहाँ का जो सब कुछ जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत डिस्टर्ब है, और वो कहता है कि लगता है मुझसे गलती हो गई, ये नहीं आना चाहिए। बट वो उसकी वाइफ जो है वो इसी बात पे जो है वो आर्गुमेंट उससे कहती है प्लीज हैरी तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यही हमारे लिए ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि जब वो उस प्लेस पे जहाँ पे होते हैं तो वो बड़ी क्या कहते हैं डस्टी एरिया होता है ना, तो क्या करते हैं वो फिर चलते चलते थोड़ा सा आगे जाते हैं कि हम कहाँ जाएं। आगे वो देखते हैं तो उन्हें ना अपने जमीनी लोग जो है वो नजर आते हैं, वो तकरीबन उनके 1000 जो है उनकी होती है उनकी तादाद ना। तो लेकिन वो देख के वो हैरी हैरान होते हैं कि वो लोग जो है वो चेंज हुए हुए हैं, वो जमीन के लोग नहीं लगते ना। तो मतलब कि उनके चेहरे जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक, और उनकी आईज जो है येलो गोल्डन, इस तरह का जो है ना उनका कलर, और हाइट वाइज उनके जो है बहुत, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, और अजीब सी उनकी ना मतलब कि उनकी लुक जो है ना बहुत अजीब सी है। तो हैरी तो पहले इस चीज को ना मानता ही नहीं कि ये मतलब कि ये जमीन के रहने वाले हैं। तो लेकिन फिर जब वो लोग कहते हैं कि हम जमीन से ही आते हैं, तो फिर हैरी जो है वो इस चीज को जो है वो वो भी मान जाता है, एग्री करता है कि हाँ हो सकता है मे बी। तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि उनको जो है वो एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे जमीनी लोग खुद रह रहे होते हैं ना, वो भी उधर ही जो है वो वहां जाके वो स्टे जो है वो करते हैं। अब जो वहां जाके स्टे करते हैं तो फिर क्या होता है कि मतलब कि वहां ना तो कोई उनको सुकून होता है, ऑक्सीजन कम, डस्ट जो है वो इतनी है कि उनको ऐसे लग रहा है कि उनका इधर दम घुटेगा। अब हैरी जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है, वो लगता है कि हम यहाँ हमेशा के लिए आ गए हैं, अब हमारा जाने का कोई रास्ता नहीं है। बट उसके बच्चे जो है वो भी जो है परेशान होती हैं, अपने पापा से कहते हैं पापा हम वापस जाना चाहते हैं, अपने घरों में जाना चाहते हैं। तो फिर हैरी जो है वो कहते हैं कि बेटा आपने इधर उधर नहीं जाना, बच्चों को एडवाइस कुछ एडवाइस करता है कि ये जो डेड सिटीज होते हैं ना इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे घोस्ट जो है, पता है ना घोस्ट क्या होते हैं, वो जिन्नात वगैरह भूत वगैरह कहते हैं यहाँ पे वो लोग हैं। तो उनकी कहते हैं सुनने में जो आया, जो ऐसी डेड सिटीज होती है ना वहां पे ये चीजें पाई जाती हैं। तो आप लोगों ने इधर उधर कहीं नहीं जाना, आप जहाँ पे हम स्टे किया हुआ है आप लोगों ने इधर ही रहना है। तो बच्चे जो है वो फिर एकदम डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। बट वो हैरी जो है उनको इस चीज की तरफ भी लाता है कि नहीं डरना नहीं है, बस आपने अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, और हमें नहीं, आप तुम लोगों ने जो है लॉनली कहीं नहीं जाना, हमें नहीं छोड़ना। तो फिर क्या होता है कि हैरी थोड़ा सा टाइम गुजरता है, तो हैरी कहता है कि ना लगता है हमें काफी गुजर जाता है, तो उसके बाद वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है कि लगता है कि यहाँ से जमीन से कोई भी हमें लेने के लिए नहीं आएगा। अब हैरी जो है वो एक स्टेयर्स करके वो जमीन की तरफ देख रहा है, और परेशान परेशान कंडीशन में देख रहा है, और वो देख रहा है कि वहां जमीन के लोग कैसे हैं कि हर वक्त इनकी एटमी वॉर जो है वो होती रहती है। तो ये मतलब कि ये जमीन जो है वो पीसफुल नहीं है, इस लिहाज से वो सोचता है, तो फिर उसका बिल्कुल जाने को दिल नहीं करता। लेकिन फिर जब वो अपनी वाइफ अपने बच्चों को देखता है
तो फिर यानी कि वो फिर चाहता है कि नहीं मैं वापस जाऊंगा। तो लेकिन क्या होता है कि वहां कोई भी उनको वापस लेने के लिए आता ही नहीं। अब क्या होता है कि हैरी जो है वो इन लोगों को कहता है, वहां के जो लोग होते हैं उनमें से वो उनको कहता है कि तुम लोग मेरे मेरे साथ आओ और मेरे हम एक रॉकेट तैयार करते हैं। उन्हीं में से ना एक आदमी जो है वो हैरी को कहता है कि मेरी मेटल शॉप है, तो चलो फिर ना वहां पे जो है वहां से एक रॉकेट जो है वो तैयार करते हैं। तो हैरी जो है वो जब अपनी शॉप में उसमें जाता है जहाँ पे वो मेटल शॉप है, तो वो देखता है कि वहां का एक ना रॉकेट पड़ा है और वो बहुत जो है वो खराब सी कंडीशन में था। तो अब हैरी जो है अपने बच्चों को और वो जो लोग जो वहां के होते हैं वो उनको कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, हम रॉकेट तैयार करेंगे। तो वो मतलब कि वो कहते हैं कि ये रॉकेट तैयार करने के लिए कम से कम आपको 30 ईयर्स चाहिए, 20 to 30 ईयर्स लगते हैं एक रॉकेट तैयार करने में। तो हैरी कहते हैं अगर हम मिल के काम करेंगे तो ये काम पॉसिबल है। बट उसको कोई साथ नहीं देता, वो अकेला जो है इस लेसन में ये बताया गया है कि वो अकेला जो है वो फोर्स कर रहा है कि जब हम मिल के काम करेंगे तो हम उस गोल को अचीव कर लेंगे। बट वो बाकी जो है सब वो कहते हैं वो हाथ पे हाथ रखें और वो स्माइल पास करते हैं कि हैरी ये क्या कह रहा है, यानी कि रॉकेट तैयार करने में 20 to 30 ईयर्स लगते हैं। और आपको पता है हमारा जो एक अर्थ ईयर जो है वो 365 ईयर का है। बट मार्स जो है इसका 1 ईयर जो है वो 687 डेज का है। मार्स का जो है वो 1 डे जो है वो 687 डेज का है। और इसमें जो है वो ये मैंने देखे ना, आपको मैंने इसी पे यहाँ भी पॉइंट आउट किया था कि 1 डे 0 8 37, यानी कि उनका 1 डे जो है वो है हमारा 1 डे 24 आवर्स का होता है ना। तो उनका जो मार्शियंस का जो है वो उनका 1 डे जो है 24 आवर्स एंड 39 सेकेंड्स, 39 37 39 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। तो टोटली जब इसको करेंगे इसको 1 ईयर से, तो ये फिर बनती है 687 डेज, यानी कि डबल जमीनी से जो है इनका टाइम जो है फिर ज्यादा होता है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि हैरी जो है वो मतलब कि वो डिसअपॉइंटेड नहीं होता, वो कहता है ये मेरा साथ नहीं दे रहे बार। बट वो अब खुद ही चला जाता है अपनी शॉप पे ना, उधर जो मेटल शॉप होती है वहां जाता है और वो जाके ना रॉकेट तैयार करने के लिए बैठ जाता है और वो रॉकेट तैयार करना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ नहीं होता, मतलब कि वो ऐसा ऐसा बेचारा खुद ही कर रहा होता है। फिर कहते हैं इसी 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 टाइम में 5 ईयर्स जो है वो गुजर जाते हैं। 5 ईयर्स गुजर जाते हैं और 5 ईयर्स के बाद जो है वो कहते हैं जमीन से जो है मार्स पे कुछ सोल्जर्स आते हैं। वहां पे आके ना हैरी को आके कहते हैं कि जब देखते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जमीन से कुछ लोग आए हुए हैं हमारे। तो अब हैरी जो है ये बताया गया है कि उस प्लेनेट की मतलब कि एटमॉस्फेयर ऐसी है डस्टी और आयरन ऑक्साइड, ये इसमें है ना आयरन ऑक्साइड की वजह से उन लोगों के चेहरे जो हैं वो इतने रफ हो गए और उनकी और जो बूढ़े लोग थे वो जवान हो गए। यानी कि उसके एटमॉस्फेयर ऐसा था कि हैरी जो था वो अपने बेटे जितना लग रहा है और उसकी हाइट जो है वो तकरीबन 8 to 9 फीट जो है वो हो जाती है। तो वो जब लोग देखते हैं वो कहते हैं कि हमारे जमीनी लोग किधर गए हैं, वो उनसे पूछते हैं हैरी से। और हैरी जो है आगे से उनको बताता नहीं है कि हम ही हैं वो, मतलब कि वो जजमेंट नहीं ना कर सकते। वो वो लोग देखते हैं कि हमारे जो जमीन के लोग हैं वो कहाँ गए हैं। वो सारे ओवरऑल जो है पूरे वो मार्स पे चक्कर लगाते हैं, एक राउंड लेते हैं और हैरी उधर ही खड़ा है उनको देख रहा होता है। बट हैरी और उसकी बीवी और बाकी बच्चे जो हैं और वो जो लोग जो होते हैं ना वो उनको बिल्कुल नहीं बताते कि हम लोग जमीन से आए हुए हैं। वो मतलब कि वो पूछते हैं और उसको भी एक क्यूरियस उन सिपाहियों को होता है कि ये लोग कहाँ गए हैं। फिर लेकिन वो जब उनसे मिलता है हैरी से, उसकी वाइफ से और बाकी लोगों से, फिर वो कहते हैं कि ये लोग तो बड़े पीसफुल लगते हैं, ये लोग कैसे उन लोगों को मार सकते हैं, लगता तो नहीं है। एनी हाउ हैरी जो है वो इतना हेट फ्लड अप हो जाता है ना जमीन के लोगों से, वो कहता है मैंने जमीन के लोगों में नहीं जाना। यानी कि ये उसका पॉइंट आउट होता है। वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है कि हमने इनको नहीं बताना कि हम ही वो ही जमीनी लोग हैं, मतलब कि वो उनको बता ही नहीं रहा। वो इसलिए कि वो कहते हैं वी हेट देम,
सब लोग कहते हैं हमें नहीं वो लोग पसंद, इसलिए हम जमीन पे जाना ही नहीं चाहते। हालांकि वो इतने वहां पे उसके एटमॉस्फेयर से इतना वो तंग है, तो लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। इसलिए वो ये एक सीक्रेट एंड पे जो क्या बताया कि उन्होंने ये एक सीक्रेट रखा है, वो उन सोल्जर्स को बताते ही नहीं है कि हम लोग जो है वो जमीनी लोग हैं। अब क्या है कि एंड पे वो बताते हैं कि एंडिंग इसकी ये थी कि वो जो सिपाही है वो जाके दोबारा जो आर्मी का जो लेफ्टिनेंट होता है उसको जाके बताते हैं कि सर ये वहां की सूरत हाल है मार्स की, वहां पे हमारे जमीनी लोग नजर नहीं आए, तो हम समझ रहे हैं शायद कहीं उन्होंने ना उनको कत्ल कर दिया हो। तो बट वो लोग जो है वो लगते नहीं है कि वो कोई मर्डर भी कर सकते हैं, वो बड़े पीसफुल और मिलनसार लोग लगते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कहानी का एंड जो है वो इसी पे आता है। तो उसका ऑफिसर जो है वो ये जजमेंट करता है कि मे बी कि वहां पे कोई ऐसी भूत प्रीत या कुछ ऐसे हों लोग जिन्होंने उनको मार दिया हो, लेकिन ये भी एक इस यूनिट में ये भी एक सीक्रेट है कि हैरी और कोरा और वो लोग, उन लोगों ने ये बात जो है एक सीक्रेट रखी कि यानी कि वो इतने इस एटमी वॉर से इतना वो फ्लड अप होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ रहना हमें मंजूर है लेकिन हम जमीन पे नहीं जाएंगे। तो आई थिंक कि इसका जो है वो मोरल क्या है कि मतलब कि हम जमीनी लोग जो है इतना कोरल हैं, झगड़े करते हैं और पीसफुल नहीं है। और वो लोग जो हैं क्योंकि पीसफुल थे इसलिए वो यहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं, वो उस मार्स पे रहना जो है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं देन अर्थ। तो इसका मोरल जो है यही है कि मतलब कि हम इंसानों को जो है वो कोरल नहीं होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। एंड देन सी यू नेक्स्ट लेक्चर।